Assalamu alaikum ji. Our today's presenter is Miss Wajiha Islam. So she is a very good researcher in horticulture sector. She is going to present a research paper that has been recently published by our lab. So over to Miss Wajiha Islam. Assalamualaikum. I am Wajiha Islam, joined with Faith, and I am going to present a research topic recently published by our respected teacher, Sir Dr. Muhammad Shafiq and his subordinates. The topic I'm going to present is silicon-induced hypoxia tolerance in citrus rootstocks with modulation in polyamines metabolism. The research explores how the citrus fruits, which are highly important both economically and nutritionally, and how they can be protected from hypoxia condition through the use of silicon along with polyamines metabolism regulation. Okay, citrus. Why the citrus is chosen for the research? Citrus is one of the most valuable food crops and globally, and its annual production globally exceeds up to 150 million tons. And in Pakistan, especially Kinnu, it is the leading fruit crop which is exported nationwide and in many countries. However, citrus production faces a lot of the serious challenge, which is hypoxia. We know citrus is produced in the regions Sargodha, Laya, Multan, and during heavy rains, during flooding, there is high risk of hypoxia condition, which decreases its yield, survival, growth, and so. Under hypoxia, what is hypoxia condition? Hypoxia is lower oxygen levels in the root zone, which leads to poor respiration, reactive oxygen species buildup, and reduced plant growth, and thus its survival and yield. In this presentation, I will explain how silicon and polyamines play a role in improving tolerance of citrus rootstocks under hypoxia stress conditions. Hypoxia stress. As I just discussed or told you about hypoxia condition, how is hypoxia caused? You all know that plants, the root system of plant, takes up oxygen from the soil. The air spaces in the soil, it takes up oxygen from that spaces. And when there is flooding or waterlogging condition, the excess water fills all the air spaces in the soil region, and so the plant is unable to take up the oxygen from that. So hypoxia, what does hypoxia does? It limits the ATP production, which is you all know that photosynthesis किससे होती है? Oxygen is a precursor of that. Okay? And when there is a shortage of oxygen, there will be no photosynthesis or limited photosynthesis, which will lead to lesser ATP production. And when we all know ATP is used for many physiological functions or processes. But when there is a stress, the ATP production is already limited, and that limited ATP production is used in the survival of the plant and not the other physiological processes. And thus it weakens the nutrient uptake and water uptake, and it also triggers the ROS production, the reactive oxygen species, which causes the oxidative damage to the plant cells. And its citrus, it is also very prone to poor soil aeration and drainage, and hypoxia can lead to severe stress conditions and growth and yield losses. Silicon. Why the researcher chose silicon for the plant stress tolerance? We know silicon is not so much essential as in element, but it is named as quasi-essential. What does it mean? That it is not so much essential for the plant survival or need, but it is beneficial enough that it is needed for the plant growth and regulation, and it
regulates so many of the physiological processes, and it acts as a precursor and regulator in so many processes. It's the main function of silicon is it strengthens the cell wall, basically the root cell wall, and enhances antioxidant enzyme activity and improves nutrient uptake. And how does it do this? We all know cell wall. Cell wall के अंदर क्या होता है? लेयर्स होती हैं, एंड सिलिकॉन क्या करता है? उसके अंदर सिलिका की एक लेयर बना लेता है which strengthens the cell wall. और जो भी बाहर का अगर फॉर एग्जाम्पल वहाँ पे स्ट्रेस आ रहा है तो it will be resistive towards that. This is silica protective layer around the cell wall. And under hypoxia, silicon acts as a shield, allowing plants to survive better in waterlogged cells. मैं वैसे भी करती नजर आता है। ਹੋ ਗਈ ਚਲੋ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਦਾਂ ਜਾ ਕੇ ਇਦਾਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਓਕੇ Okay, in this chart, जनरली फ्लड आता है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब एक्सेसिव वाटर आ जाता है तो वो जितनी भी एयर स्पेसिस हैं जिसके अंदर से प्लांट रूट्स में ऑक्सीजन टेकअप करना है वो उससे फिल हो जाती है, ठीक है। एंड देन देयर इज हाइपोक्सिया कंडीशन, दैट इज लो ऑक्सीजन और डेप्रिवेशन ऑफ ऑक्सीजन। उससे क्या होता है? सबसे पहले स्टोमेटा क्लोजर होता है जिसकी वजह से ऑब्वियसली प्लांट या रूट्स जो होती हैं हमारी वो किधर से वो लेती हैं, जो गैसेस एक्सचेंज होता है वो होता है थ्रू स्टोमेटल जो ऑब्लिक होती है। सबसे पहले वो क्लोज होता है, उसके बाद न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी होती है। जाहिर है जब हमारे पास ना पानी ऊपर जा रहा है प्लांट से, ठीक है, और ना ही वहाँ पर न्यूट्रिएंट आ रहे हैं तो देयर इज डेफिनेटली न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी। उसकी वजह से रॉस reactive oxygen species, you all know about ROS reactive oxygen species. What are those? They are free radicals or molecules or ions which are highly reactive and they are produced during stress conditions. Yeah. And then जब ये सारे स्ट्रेस आता है तो हमारे पास जो रोस है उसकी प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है। उससे क्या होता है? लिपिड पर ऑक्सीडेशन, जो प्लांट का अपना डिफेंस सिस्टम है वो लिपिड पर ऑक्सीडेशन करने लग जाता है। जाहिर है रोस है तो वो जाकर उससे सेल वॉल से रिएक्ट करता है और फिर हमारे पास लिपिड पर ऑक्सीडेशन होती है जिससे सेल मेम्ब्रेन होती है वो डैमेज हो जाती है सबसे पहले। और उसके बाद रिडक्शन, जाहिर है मैंने आपको बताया कि जब एटीपी, हर हमारे पास जो एक्टिविटी होती है या फिजियोलॉजिकल फंक्शन है, प्रोसेस है, उसके अंदर एटीपी यूज होना है। और जब इस तरह की स्ट्रेस कंडीशन होती है तो जितना भी प्लांट का एटीपी प्रोडक्शन है वो प्रोसेसेस को छोड़कर तो वो उसकी सर्वाइवल के ऊपर वो होने लग जाता है। जैसे हमारी डेली लाइफ के अंदर भी हम जब हमारे पास कोई प्रॉब्लम आता है तो हमारा फोकस हमारी बाकी डेली लाइफ से हटकर हमारे सर्वाइवल के ऊपर आ जाता है, उसी तरह प्लांट का भी है। और उससे क्या होता है? फिर मजीद प्रोटीन स्ट्रक्चर डैमेज हो जाता है। जाहिर है जब एटीपी नहीं होगा, हमारे पास एनर्जी नहीं होगी प्लांट के लिए, दूसरे प्रोसेसेस के लिए, तो देयर इज डेफिनेट प्रोटीन स्ट्रक्चर डिग्रेडेशन। उससे क्या होता है? अब सिलिकॉन नैनो पार्टिकल्स या फिर सिलिकॉन हम किसके फॉर्म में दे सकते हैं? नैनो पार्टिकल्स के। अब सिलिकॉन मैंने आपको बताया कि क्या करता है, एक प्रोटेक्टिव शील्ड सी बना लेता है सेल में, वॉल के अंदर या सेल मेम्ब्रेन के अंदर, ठीक है, जिसकी वजह से जो हमारे पास रूट सिस्टम है, स्पेशली रूट सिस्टम, जिसकी वजह से हाइपोक्सिया कंडीशन आई है, जो ऑक्सीजन को नहीं टेकअप कर पाया, ठीक है, तो उसके अंदर क्या होता है? एक प्रोटेक्टिव शील्ड बन जाती है और जो सिलिकॉन है वो बाकी बहुत से पाथवेज को वो करता है। सबसे पहली चीज वो करता है वो एरेनकाइमा पोर्स को ओपन कर देता है। वो पाथवे एरेनकाइमा क्या होता है? इट इज स्पेशल पोर्स, ठीक है, इनसाइड द रूट एरिया, जिससे क्या होता है कि जो शूट से ऑक्सीजन का सप्लाई है या एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन का सप्लाई है वो रूट्स तक आने लग जाता है ताकि उसकी ऑक्सीजन की डेप्रिवेशन से रूट्स ब्राउन या विल्ट ना हो जाए या डाई ना हो जाए, ठीक है। और सिलिकॉन मैंने आपको बताया पहले कि वो बहुत से फिजियोलॉजिकल पाथवेज को ट्रिगर करता है, उसको रेगुलेट करता है। इट एक्ट्स एज ए रेगुलेटर और प्रिकर्सर फॉर दैट।
तो उससे बहुत ज्यादा हमारे पास बायो हार्मोन ट्रांसपोर्ट हो जाता है, ठीक है, और पॉलीअमाइन बायोसिंथेसिस स्टार्ट हो जाती है, और मैं आपको आगे एक्सप्लेन करती हूँ। और इससे हमारे पास डिफरेंट स्टोमेटल कंडक्टेंस स्टार्ट हो जाती है, और फिर फोटोसिंथेसिस एनहांस हो जाती है, और फिर हमारे पास प्लांट ग्रोथ बेहतर हो जाती है। पॉलीअमाइंस, पॉलीअमाइंस क्या होते हैं? इसके नाम से जाहिर हो रहा है कि पॉलीअमाइंस लाइक डिफरेंट अमाइन ग्रुप्स जब कंबाइन होते हैं और एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसको हम कहते हैं पॉलीअमाइन, मतलब पॉली मल्टीपल और अमाइन ग्रुप्स, ठीक है। और इसके अंदर मेजरली होता है ऑर्निथिन और आर्जिनिन हमारे पास अमाइंस यूज, ठीक है। और ये क्या करते हैं बेसिकली? ये प्लांट के अंदर एंटीऑक्सीडेंट रेगुलेटर के तौर पे काम करते हैं, ठीक है। अब मैंने आपको बताया एंटीऑक्सीडेंट सिस्टम जो होता है प्लांट का, वो किसके लिए होता है? वो रॉस रेगुलेशन के लिए होता है। प्लांट का अपना एक रॉस होम्योस्टेसिस का एक वो होता है, फंक्शन होता है, जिसके थ्रू वो रॉस की प्रोडक्शन को, क्योंकि प्लांट के ऊपर स्ट्रेस कभी भी आ सकता है, तो प्लांट के अंदर ये बिल्ट इन एक ग्राउंड लेवल के ऊपर एक फंक्शन होता है, या आप सिस्टम कह लें, जिसके थ्रू ये सारा वो होता है, और उसके लिए यूज करता है प्लांट एंटीऑक्सीडेंट यूज करता है, और पॉलीअमाइंस एज दैट यूज वो होते हैं, वर्क करते हैं। इसकी मेन टाइप्स में कौन कौन से आ जाते हैं? प्रोट्रिसिन है, स्पर्मिडिन है और स्पर्मिन है। और जो हाइपोक्सिया की कंडीशन है उसके अंदर मेन क्या होता है, यूज होता है स्पर्मिडिन, और स्पर्मिन का मेन रोल है उसके। उसके बाद मैंने आपको इसके फंक्शंस बताए, रॉस का वेंजिंग, फिर रॉस को वो खत्म करता है, ठीक है, और उसका वो एक बैलेंस क्रिएट करता है प्लांट के अंदर, ताकि वो ज्यादा स्ट्रेस के कंडीशन के अंदर ना जा सके। और मेम्ब्रेन स्टेबलाइजेशन, ठीक है, और मेम्ब्रेन स्टेबलाइजेशन करता है, जाहिर है क्योंकि जो प्लांट का फर्स्ट डिफेंस सिस्टम है, जैसे हमारा फर्स्ट डिफेंस सिस्टम हमारी स्किन है, उसी तरह प्लांट का फर्स्ट डिफेंस सिस्टम क्या है? उसकी सेल मेम्ब्रेन या सेल वॉल है उसकी। तो उसको मेम्ब्रेन स्टेबलाइजेशन कहते हैं। उसके बाद वो स्ट्रेस रिस्पॉन्सिव जीन्स को एक्टिवेट करता है, क्योंकि जो पॉलीअमाइंस है हमारे पास, वो प्रिकर्सर्स हैं, या फिर आप कह लेंगे एंजाइम्स भी एक्ट करते हैं, ठीक है, जो कि हमारे पास रिस्पॉन्सिव जीन्स को एक्टिवेट करते हैं। प्रोटीन बेस्ड है ना, अमाइंस है। उसके बाद तीन एंजाइम इसके क्या है? ऑडीसी है, एडीसी है, और ये अच्छा। इसके बाद हमारे पास क्या है कि सिलिकॉन इंड्यूस्ड मॉड्यूलेशन ऑफ पॉलीअमाइंस। अब हम लोगों ने सिलिकॉन को पॉलीअमाइंस के साथ मॉड्यूलेट करके तो हाइपोक्सिया कंडीशन के अंदर यूज किया? द मेन क्वेश्चन इज दिस। अब क्या होता है? अब पॉलीअमाइंस की जो सिंथेसिस है, उसकी जो बायोसिंथेसिस है, उसके अंदर सिलिकॉन का बहुत बड़ा रोल है। सिलिकॉन एज आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाती हूँ। इसके अंदर आपको कोई भी सिलिकॉन नहीं नजर आ रहा, ठीक है, डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता, लेकिन वो क्या कर रहा है? वो ऐसे जीन्स को रेगुलेट कर रहा है, वैसे जीन्स को ट्रिगर कर रहा है, जो क्या करते हैं, जो इन जो एंजाइम्स इसके अंदर काम कर रहे हैं उनकी सिंथेसिस को बढ़ाता है। और क्या होता है? अब जैसे कि इथाइलिन, यहाँ पे इथाइलिन का काफी भी शो हो रहा है, और वो क्यों हो रहा है? क्योंकि जब आपको पता है, जब प्लांट एरोबिक रेस्पिरेशन से एनारोबिक पे शिफ्ट होता है, तो क्या होता है? इथाइलिन की प्रोडक्शन भी ज्यादा हो जाती है। जब स्ट्रेस आता है तो इथाइलिन की प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो जाती है, ठीक है। अब पोस्ट हार्वेस्ट के अंदर भी हमने यही देखा है कि जब प्लांट का मेन ऑक्सीजन से कट ऑफ होता है, तो वो क्या करता है? वो एनारोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट कर देता है, और उसकी इथाइलिन की प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो जाती है। अब स्ट्रेस के अंदर भी यही होता है, ठीक है, और जब ये होगा तो बाकी जो सारे पाथवेज हैं उसकी ब्लॉकिंग होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। अब सिलिकॉन क्या करता है? ऐसे पाथवेज को रेगुलेट करता है, ऐसे जीन्स को रेगुलेट करता है जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स बनाते हैं, और हमारे पास ऐसे हॉर्मोन्स को करते हैं, एंजाइम्स करते हैं, जो कि हमारे पास ये देखिए प्रोटीसिन, स्पर्मिडिन और स्पर्मिन, मैंने अभी आपको बताया पॉलीअमाइंस के नाम है, ठीक है। और मेन हमारे पास क्या है? ये दो है, स्पर्मिडिन और स्पर्मिन। तो वो ऐसे एंजाइम्स एक्ट करती हैं कि वहां से वो पाथवेज ब्लॉक हो जाते हैं, और वो किसकी सिंथेसिस को बढ़ा देते हैं? पॉलीअमाइंस की सिंथेसिस को बढ़ा देते हैं, जो कि हमारे पास एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, और वो किसको स्कैवेंज कर रहे हैं? रोज को, ठीक है, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज को, जो कि स्ट्रेस कंडीशन के ड्यूरिंग हमारे पास प्रोड्यूस हुआ है, और बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हुआ। ओके, और ये क्या करता है? अब सिलिकॉन ने उसको तो वो कर दिया, ये है स्पर्मिडिन और स्पर्मीन, ठीक है, एक्यूमुलेशन स्टार्ट कर दी उसने। उसने क्या किया? पॉलीअमाइन कैटाबोलिज्म को बैलेंस कर दिया, ठीक है, जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस आया हुआ था उसको उसने बैलेंस कर दिया। किस तरह से? जो एक्सेसिव रॉस प्रोड्यूस हो रहे थे उसको उसने कम कर दिया, और बाकी उसने किसकी प्रोडक्शन को बढ़ा दिया? पॉलीअमाइन, और उसको एक बैलेंस में ले आया, जिसको मैंने आप पहले भी बताया, जो कि रॉस होम्योस्टेसिस था। होम्योस्टेसिस पहले भी हमने पढ़ा हुआ है, बैलेंस मेंटेन करने को कहते हैं, ठीक है। अच्छा,
हाँ जी, चलिए ठीक है। मैं 2 मिनट में हाँ जी, फिर मैं आता हूँ उधर ही। आप किधर है? मैं उसके बाद सिलिकॉन क्या करता है, मैंने ये पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ कि सिलिकॉन रूट ग्रोथ और सर्वाइवल को इंक्रीज करता है। किस तरह से, वो मैंने बताया आपको, वो एक शील्ड सी बना लेता है। आयरन कायमा वो रूट जोन्स, वो एयर स्पेसेस को खोल देता है। उसके बाद वो क्या करते हैं, लिंक विद एंटीऑक्सीडेंट, वो भी मैंने आपको बताया। एसओडी जो रॉस है, उसकी एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। पेरोक्सीडेजेज है हमारे पास, ठीक है। तो उसके अंदर वो क्या करता है, वो उसके एंजाइम्स को रेगुलेट करता है कि उसकी प्रोडक्शन कम हो जाए। उसके बाद ये मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, मैकेनिज्म्स ऑफ हाइपोक्सिया टॉलरेंस इसके अंदर। अच्छा, अब एक होता है, हम लोगों ने टर्म्स पढ़ी हुई हैं। जब दो चीजें इकट्ठी हमारे पास काम कर रही होती हैं, उनका एक रेगुलेशन सिस्टम होता है। या तो वो एंटागोनिस्टिक होते हैं या वो सिनर्जिस्टिक होते हैं, ठीक है। और या वो एक नॉर्मल पैटर्न पे चल रहे होते हैं। एंटागोनिस्टिक आपको पता है, एक बढ़ रहा है तो दूसरा कम हो रहा है। लेकिन सिनर्जिस्टिक क्या है कि अगर एक बढ़ रहा है और दूसरा भी बढ़ रहा है तो उनका 1+1 2 नहीं होगा, 1+1 3 होगा उसका, ठीक है। उसका जो एक सम अप फंक्शन है वो दोनों से ज्यादा होगा। उसी तरह जो सिलिकॉन है और जो पॉलीअमाइंस हैं वो सिनर्जिस्टिकली एक्ट करते हैं। इसीलिए इस रिसर्च के अंदर भी सिलिकॉन और पॉलीअमाइंस को यूज किया गया है, ताकि वो दोनों सिनर्जिस्टिकली एक्ट करें और वो प्लांट को उस स्ट्रेस कंडीशन से बाहर ले आए। रिड्यूस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, वो पहले भी डिस्कस हो गया रॉस की उसमें। इम्प्रूव रूट रेस्पिरेशन एंड मेटाबॉलिज्म, रूट रेस्पिरेशन किस तरह से वो बढ़ा रहा है सिलिकॉन और पॉलीअमाइंस, कि वो आयरन फार्मा मैंने आपको बताया, वो रूट जोन एयर स्पेसेस खोल देता है और शूट से जो ऑक्सीजन की वो सप्लाई है वो किसके अंदर जा रही है, रूट्स के अंदर जा रही है। उसके बाद फ्लो चार्ट यहाँ पर नजर किसी को भी नहीं आ रहा होगा वह। हाइपोक्सिया कंडीशन के अंदर यहाँ क्या है कि हाइपोक्सिया कंडीशन में रॉस इंक्रीज हो रहा है और डैमेज हो रहा है, ठीक है। उसके बाद विद सिलिकॉन, अगर सिलिकॉन हम देते हैं पॉलीअमाइंस के साथ, तो क्या होगा, रॉस की प्रोडक्शन कम हो जाएगी और टॉलरेंस ज्यादा हो जाएगी। इसके बाद केस स्टडीज है, इसकी फाइंडिंग्स। इस रिसर्च का मेन पर्पस ही ये था कि हम लोग किस तरह से सिलिकॉन और पॉलीअमाइंस को यूज करके, तो जो हाइपोक्सिया कंडीशन है, मैंने आपको बताया कि जो ड्यूरिंग फ्लड, जो हैवी रेन्स, जो फ्लडिंग होती है उसकी, उसमें जो हाइपोक्सिया कंडीशन होती है, तो उसको किस तरह से हम मिटिगेट कर सकते हैं। और सिट्रस की प्रोडक्शन को, जो कि हमारी मेजर एक्सपोर्ट क्रॉप है, ठीक है, वन ऑफ द मेजर एक्सपोर्ट क्रॉप, तो उसकी हम प्रोडक्शन को किस तरह से नॉर्मल रख सकते हैं या हमारे पास यूजुअल के मुताबिक रख सकते हैं, ताकि वो स्ट्रेस कंडीशन में कम यील्ड ना दे और हमारी उस पे इकोनॉमी पे फर्क ना पड़े। अच्छा, इसके पैरामीटर्स हमने कौन कौन से लिए हैं, ग्रोथ लिया है, ठीक है। हम जाहिर है हम ग्रोथ देखेंगे, हम कंट्रोल रखने हैं, हम और ट्रीटेड हम सारे रखने हैं। एक कंट्रोल हो गया जिसके अंदर हम लोगों ने कोई भी उसको कंडीशन नहीं दी। ट्रीटमेंट 1 हमारे पास हो गया कि हम लोगों ने सिर्फ सिलिकॉन उसको दिया। ट्रीटमेंट 2 हमारे पास हो गया कि हमने उसको सिर्फ पॉलीअमाइंस दी, ठीक है। और ट्रीटमेंट 3 क्या हो गया कि हमने सिलिकॉन प्लस पॉलीअमाइंस दी। एंड देयर वाज क्लियर डिफरेंस इन ऑल दीज। उसके बाद हम लोगों ने क्लोरोफिल कंटेंट हम लोगों ने क्यों इसमें लिया है, क्योंकि सबसे पहले क्या होता है इस ऐसी कंडीशन स्ट्रेस में, फोटोसिंथेसिस हमारे पास रिड्यूस होती है, क्योंकि एटीपी प्रोडक्शन मैंने आपको बताया कि सर्वाइवल के अंदर चली जाती है और हमारे पास जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं वो कम हो जाते हैं। और जब फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, क्लोरोफिल की मदद से होती है वो, ठीक है, और वहां पर हमारे पास क्या हो जाएगी, क्लोरोसिस हो जाएगी। एंजाइम एक्टिविटी हम इसके अंदर हम लोगों ने देखी है, और पॉलीअमाइन कंटेंट इसके अंदर हम लोगों ने देखी। अच्छा, अब इसके अंदर मेन, ये मैं वैसे पहले ही डिस्कस कर चुकी हूँ सारा कुछ। जब मैं ये सब सारी रिसर्च पढ़ रही थी अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर, तो एट द एंड मेरा खुद ये सवाल था कि ठीक है, हम लोगों ने सिलिकॉन दे दिया, हमने पॉलीअमाइंस दे दिए, ठीक है, उसने ये रॉस को कम कर दिया, लेकिन जो क्रॉप है वो तो अभी भी पानी में है। तो हाउ विल इट सरवाइव उस कंडीशन में, कि वो अभी भी उस कंडीशन में है, ठीक है। उसने ऊपर से वो सारा वो रॉस को कम कर दिया, पॉलीमाइंस बढ़ गई, दिस एंड दैट, लेकिन वो स्टिल उसमें पानी में है, ठीक है। जो एयर स्पेसिस है वो तो स्टिल पानी से भरी हुई है अभी भी, जो वाटर एक्सेस वाटर ने वो फिल की थी। तो उसके अंदर वही चीजें जो मैं ऑलरेडी वैसे बता चुकी हूँ, कि वो रूट स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन होती हैं, ठीक है, कि वो एयर स्पेसिस कर देता है कि वो शूट से रूट सिस्टम में आ जाता है, ऑक्सीजन सप्लाई, एयर चैनल्स बन जाते हैं।
दूसरा क्या होता है कि रूट बैरियर स्ट्रेंथनिंग, सिलिकॉन से रूट की स्ट्रेंथनिंग होती है। तीसरा पॉलीअमाइन रॉस क्रॉसटॉक, वो भी मैंने डिस्कस कर लिया ऑलरेडी। और हार्मोनल सिग्नलिंग बैलेंस के इथाइलिन की प्रोडक्शन को कम करके तो पॉलीअमाइन्स की सिग्नलिंग को और रेगुलेशन को बढ़ाती है। और लास्ट क्या है इसके अंदर, इम्प्रूव्ड रिडॉक्स होम्योस्टेसिस, ये भी मैं डिस्कस कर लिया है। रॉस होम्योस्टेसिस जो मैं डिस्कस कर रही थी, क्योंकि रॉस से क्या होता है, ऑक्सीडेटिव डैमेज है ना, क्योंकि इट्स ड्यू टू ऑक्सीजन, तो वो ऑक्सीडेटिव डैमेज के अंदर आता है। तो वो क्या होता है, रिडॉक्स हमारे पास क्या है, ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन। तो वो क्या करता है कि साथ में ऐसे पाथवेज, मतलब रिडक्शन पाथवेज को वो कर देता है, ताकि वो एक बैलेंस के अंदर बैलेंस मेंटेन हो जाए। प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस इसकी हैं कि हम फार्मर्स को सिलिकॉन वो दे सकते हैं, नैनो पार्टिकल्स बनाकर दे सकते हैं, और सिलिकॉन फर्टिलाइजर्स हम यूज कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास क्या कहते हैं, ये मिटिगेट हो सकती है प्रॉब्लम। उसके बाद रूट स्टॉक सिलेक्शन, ऐसा रूट स्टॉक हम, क्योंकि सिट्रस हम लोगों को पता है मोस्टली किस तरह से ग्रो होता है, हम रूट स्टॉक लेते हैं और फिर उसके ऊपर साइन ग्रो करवाते हैं अपनी मर्जी का, ठीक है। वो हमें पता है पंजाब में डिफरेंट होता है और केपीके और उसमें डिफरेंट होता है। तो हम ऐसा रूट स्टॉक यूज करें अपने एरिया को देखते हुए, जो स्ट्रोंगर, जिसके अंदर रेजिस्टिव प्रॉपर्टीज हो, ठीक है, जो स्ट्रेस को बेहतर तरीके से वो डील कर सके, ठीक है। ऐसा ना हो कि एक स्ट्रेस आया और प्लांट फौरन ही उस चीज को कर ही नहीं पाया। उसके बाद यूजफुल इन फ्लड प्रोन सिट्रस, और ऐसे एरियाज जैसे कि मुजफ्फरगढ़ है, और यहाँ पर अगर मैंने आपको बताया हैवी रेन्स और फ्लडिंग के थ्रू, और केपी के वाले एरियाज के अंदर, ठीक है, जहाँ पर ये सिट्रस ग्रो होता है, ठीक है। तो वहां पर भी ये काफी अच्छी इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन है। उसके बाद पोटेंशियल टू एनहांस सिट्रस प्रोडक्शन सस्टेनेबिलिटी, इट इज अ सस्टेनेबल, ठीक है, इट इज सस्टेनेबल कि आप ग्रीन सिंथेसिस कर सकते हैं सिलिकॉन की, ठीक है, और उससे एक सस्टेनेबिलिटी फैक्टर भी है इसके। कंक्लूजन यही है कि हाइपोक्सिया जो है वो सिवियरली सिट्रस की ग्रोथ को लिमिट करता है, और सिलिकॉन इन कॉम्बिनेशन विद पॉलीमाइन्स उस चीज को कंट्रोल कर लेता है। थैंक यू। क्वेश्चन। सिट्रस के लिए जो हम रूट्सो भी यूज करते हैं वो किस सिट्रस के लिए? ओके, इसके लिए ना पाकिस्तान में तो अनफॉर्चुनेटली सिर्फ एक ही यूज हो रहा है, रफ लेमन जिसको कहते लेमन पंजाब में है, और हैं, सौर ऑरेंज यूज ओके। केपीके पे ना। लेकिन दुनिया में इसके अंदर ना हमने 3-4 रूट स्टॉक यूज किए हैं। उनमें कैरिजो है, ठीक है, वो उसने बेस्ट परफॉर्म किया है, ठीक है। ये दिस इज द बेस्ट रिसर्च दैट यू कैन सी ड्यूरिंग करंट सिनेरियो। जब भी पाकिस्तान के अंदर फ्लड आता है, आज का फ्लड आया हुआ है, फ्लड के दौरान प्लांट जो है पूरा सबमर्ज हो जाता है। जब सबमर्ज होता है तो हाइपोक्सिया हो जाता है, जो इसने बताया, ठीक है। अब हाइपोक्सिया के लिए ये मुझे लगता है एक चीज मिस करी कि हमने ना एक और ट्रीटमेंट भी ऐड की थी, जिसके अंदर हमने ना ये जो हाइड्रोपोनिक के पंप नहीं होते, जी जी। भी ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। हमने क्या किया कि हाइड्रोपोनिक के पंप उसके अंदर ऐड कर दिए। अच्छा, जब हमने हाइड्रोपोनिक के पंप ऐड किया ना, तो उसकी ग्रोथ जो है वो अच्छी हो गई, क्योंकि ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी हो गई। क्योंकि हाइपोक्सिया किसे कहते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन, जिसने इसने बिल्कुल एक्सप्लेन किया है कि इसको एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। एनारोबिक रेस्पिरेशन का मतलब है जिसके अंदर अब प्लांट पूरे का पूरा सबमर्ज है इतना पानी में। फर्क हमने एक्चुअली फर्ज किया, ये एक हमने पॉट के अंदर रखा प्लांट को, और पूरे का पूरा भर दिया पानी के साथ, ठीक है, और उसको एक टब के अंदर रखा। सर, ये पॉट है, ये नीचे एक टब है, ठीक है ना, और और ये इसके ऊपर ये पौधा ग्रो हुआ है, और ये पानी यहाँ तक भरा हुआ है, ठीक है। ये हम आर्टिफिशियली, ये शायद इसने कुछ तस्वीर होगी, इसके अंदर जिस तरह से सारा फ्लडेड है। भरा हुआ है पौधा ना। अच्छा, अब हमने क्या किया, कुछ पौधों के अंदर सिंपल देखा कि अब वो हम पता चला कि उसके अंदर रॉस प्रोड्यूस हो रही है। रॉस किसे कहते हैं, ऑक्सीजन के रेडिकल, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज प्रोड्यूस हो रही है, उसकी ग्रोथ कम हो रही है, ठीक है, और उसकी अंदर जो फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी भी कम हो रही है, बायोमास कम होगी जब हमने उसके बायोमास का एनालिसिस किया। लेकिन जब हमने उसका इसके अंदर वो पाइप लगाए, ये हाइड्रोपोनिक्स वाले जी सर। मोटर लगाई, दूसरे ऑक्सीजन, उससे थोड़ी सी बेहतरी हो गई, उसकी यील्ड में भी, उसके रॉस के रिडक्शन के अंदर भी, ठीक है। लेकिन अब इतना
स्लाब हुआ है, इतनी जगह पे स्लाब हुआ, हम हर जगह तो पापड़ी लेके जा सकते हैं। फिर आपने सिलिकॉन के नैनो पार्टिकल एश, वो 250 ppm, 250 ppm हमने जब उसके अंदर यूज किया तो उससे हमारी बेहतर रिजल्ट आए। 50 ppm per pot. पर पॉट, Okay. ठीक है। और उसके अंदर जब हमने उसको यूज किया तो उससे हमें उसकी जो थी ना ग्रोथ भी अच्छी हो गई, रॉस भी रिड्यूस हो गई। जब हमने पता चला कि ये रॉस और रिड्यूस किस वजह से हुई है, तो इसने बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया कि उसके अंदर पॉलीमाइंस का लेवल जो है वो बढ़ गया। क्या हो गया? पॉलीमाइंस का लेवल बढ़ गया। इट मींस दैट अगर पॉलीमाइंस का लेवल बढ़ जाए तो हाइपोक्सिया खत्म हो जाता है। अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि या तो हम सिलिकॉन की स्प्रे कर दें या पॉलीमाइंस की स्प्रे कर दें। आर्टिफिशियली भी आप पॉलीमाइंस की स्प्रे कर सकते हैं, या सिलिकॉन ऐड कर देंगे। सिलिकॉन क्या करेगी कि इसने बड़ी बताया कि उसकी रूट की स्ट्रेंथ भी करता है, उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रोड्यूस करता है। एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं? जो रॉस को खत्म करते हैं, ऑक्सीजन के रेडिकल उसके ऊपर एक चार्ज होता है। अब ये जिस तरह सबसे पहले एसओडी, इसको हम ऑक्सीजन, मैं अक्सर कहता हूँ कि ऑक्सीजन है ना, उसके ऊपर अगर एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाए वो रेडिकल बन जाता है, ठीक है। ऑक्सीजन है, उसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ तो क्या हो गया? O2-। ये है, इसे सुपर ऑक्साइड कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? अगर कोई ऐसा एंजाइम जो इस सुपर ऑक्साइड को खत्म कर दे उसे हम कहेंगे सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज, ठीक है। एसओडी, ये पॉलीमाइन इसकी प्रोडक्शन को एनहांस कर देता है। पॉलीमाइन पहले बढ़ता है, सिलिकॉन जब ऐड करते हैं तो पॉलीमाइन का लेवल बढ़ता है। पॉलीमाइन एसओडी की प्रोडक्शन कर देती है। एसओडी क्या करता है कि O2- प्लस O2- प्लस H2O, इसके एसओडी एसओडी एक्ट करता है रिएक्शन के अंदर। तो ये दोनों आर्टिकल जो है 2O2 पे कन्वर्ट हो जाते हैं और ये H2O2 बन जाता है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। अब सुपर ऑक्साइड खत्म हो गए, लेकिन एक नया प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया। समटाइम ऐसा होता है कि आपने एक प्रॉब्लम को हल करने के लिए कई और प्रॉब्लम क्रिएट हो जाते हैं, ठीक है। अब इस H2O2 को खत्म करने के लिए हमारे पास एक और इसने बताया कैटालेस, वो भी एक्टिवेट हो जाता है। कैटालेस क्या करता है कि ये H2O प्लस O2 में कन्वर्ट कर देता है इसको। ये दो एंजाइम एट द सेम टाइम पहले H2O2 में कन्वर्ट, O2 प्लस O2 प्लस H2O, ये मिलके H2O2 और ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देते हैं। ऑक्सीजन रेडिकल खत्म हो गए, लेकिन एक नया प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया, H2O2। अब H2O2 को खत्म किसने करना है? कैटालेस में। इसने कैट का नाम लिखा हुआ है, CAT। अब कैटालेस एंटीऑक्सीडेंट है, ये दोनों एंटीऑक्सीडेंट है। हमारी जो बॉडी होती है, अक्सर हम जब स्ट्रेस में आते हैं तो जो झुर्रियां पड़ती हैं वो भी इसी रॉस की वजह से पड़ती हैं। तो आप लोग जो क्रीमें लगाते हैं उसके अंदर विटामिन ई होती है, वो भी एक्चुअली एसओडी और कैटालेस को एक्टिवेट करती हैं, जिसकी वजह से आपकी जो चेहरे की रंगत और वो चीजें ठीक हो जाती हैं। लो, इसलिए अगर हम ये चीजें, हम फ्रूट्स के अंदर ये कैटालेस, ये एंटीऑक्सीडेंट, ये बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। जब हम फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल खाते हैं तो हमें ये क्रीमेशन में लगाने की लोड़ नहीं है कि हम डायरेक्टली आपका चेहरा शाइनिंग हो जाती है, ठीक है। और स्पेशली दूसरी बात, जब हम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल या ये जो लीफी वेजिटेबल्स खाते हैं उनकी उनके अंदर होता है सेलुलोज, जो सेल वॉल बनी होती है, वो सेलुलोज डाइजेस्ट नहीं होता स्टोमक के अंदर, वो आगे डुओडेनम में और छोटी आंत में चला जाता है। छोटी आंत में होते हैं कुछ बैक्टीरिया जो इसको कन्वर्ट कर देते हैं, डाइजेस्ट करके इम्यूनो न्यूट्रिएंट्स बना देते हैं, एंटीऑक्सीडेंट बना देते हैं और वो चीजें बना देते हैं, जिसकी वजह से हमारा चेहरा निखरा और चेहरा सरसब्जो सरसब्ज तो नहीं होता, वो खूबसूरत लगता है, ठीक है। तो इसलिए मेरे लिहाज से जितना आप नेचर के खिलाफ जाओगे ना, नेचर आपको डिस्टर्ब करेगा, उतना ही नेचर आपको डिस्टर्ब करेगा। अच्छा, अब जिस तरह हमने नेचर को खराब किया ना, हमने क्या किया कि दरिया का ऊपर वो बना ली, पार्क भी बना लिया, ठीक है। तो अब नेचर ने हमें डिस्टर्ब कर दिया। ऐसे ही जब आप अपने चेहरे के ऊपर क्रीमें लगाते हैं आप नेचर के खिलाफ होते हो, ठीक है। जब नेचर के खिलाफ जाते हो तो आपको हर बार क्रीमें लगानी पड़ती है। मैं जहाज ये हम लोगों को कभी क्रीमें लगाई नहीं, हम सिर्फ पानी मारते हैं
और वो चीजें हम नेचर के खिलाफ जाते नहीं है, इसलिए हम सस्टेनेबल है हम सस्टेनेबल है। जो सस्टेनेबल प्रॉब्लम, जो सस्टेनेबिलिटी की प्रॉब्लम है, वो किस वजह से है? लड़कियों की वजह से है। ठीक है। जैसा मैंने कहा था, आग डिस्कवर ना होती तो एआई ना होता, उसको लिंक करना होता है। तो अब आपने कैसे एक चीज को लिंक कैसे करना? आपने कोई आर्टिकल लिखे कोई इकोनॉमी के ऊपर, एम उसका टाइटल ना इस तरह का खूबसूरत सा बना देना, एम पब्लिश हो जाना है। रिव्यू आर्टिकल का टाइटल इस तरह, इफ देयर इज नो फायर देयर इज नो एआई, टाइटल लिख दो ना, पब्लिश हो जाना। एक टाइटल था कॉटन जीन्स फॉर जीन्स, हाँ जी फ्रेंड्स। तो वो आर्टिकल इतना वायरल हुआ, इतना लोगों को आपने आपने रिसर्च करनी है। रिसर्च के बाद आपने टाइटल इतना खूबसूरत लिखना है कि वो लोग ना पढ़े, वो पता नहीं क्यों आए। ठीक है ना? तो वो बिकता है, वो दिखता है, वो बिकता है। ठीक है। तो आप उसके अंदर ज़रा वो लोग फिर आपके आर्टिकल की वर्थ क्या होगी कि आपके लोग आर्टिकल को ज्यादा पढ़ें और अपने आर्टिकल के अंदर उसको मेंशन करें, साइट करें। तो दैट्स सर, ये कितनी देर की फ्लडिंग के बाद अप्लाई किया था सिलिकॉन नैनो पार्टिकल्स? आप साथ ही हमने तो साथ ही ऐड कर दिया था ना पहले, वो फ्लडिंग फ्लडिंग की। उसके बाद कुछ को हमने अच्छा, हमने दो तरीके से अप्लाई किए। कुछ के अंदर हमने फोलियर एप्लीकेशन की थी, कुछ के अंदर हमने फ्लडिंग उसके अंदर ऐड किया था ना। तो हमें ज़ाहिर है, दोनों से ही अच्छे रिजल्ट मिले हैं, लेकिन ज्यादा अच्छे रिजल्ट फोलियर एप्लीकेशन से मिले हैं। ठीक है ना? तो लेकिन वो आर्टिकल अब मैं आपको भेज दूंगा ग्रुप में, तो आप उसको पढ़िएगा। तो वो हमारा पेपर भी एक 5.5 बैक फैक्टर वाले एक जर्नल है, उसमें ये पब्लिश हुआ है, वन ऑफ द प्रेस्टिजियस जर्नल है। ठीक है। तो इस तरह के अच्छा, अब ये काम ये है कि इसको छोटे छोटे काम को हम जरा तरीके से करते हैं, जिसकी वजह से वो अच्छे जर्नल में पब्लिश हो जाता है। ठीक है ना? तो मेन है कि आपका जो पेपर, हमने फिर टाइटल देखो कितना खूबसूरत लिखा है। हमने ये नहीं लिखा कि इफेक्ट ऑफ सिलिकॉन नैनो पार्टिकल ऑन सिट्रस ग्रोथ, ये नहीं लिखा हमने। ये टाइटल देखो, टाइटल देखो कि आप इस टाइटल से आपको सारी चीज समझ आ जाएगी। क्या लिखा हुआ है बच्चे, पढ़े तो? tolerance in citrus boost with modulation in polyamides metals. इसके अंदर हमने सिलिकॉन का सारा कुछ बता दिया इस टाइटल के अंदर, कि सिलिकॉन ने हाइपोक्सिया टॉलरेंस की है सिट्रस की रूट रॉक के अंदर बाय द मॉड्यूलेशन ऑफ पॉलीमाइन बायोसेंसर पाथवे। इट मीन हमने ये भी इस टाइटल के अंदर सारा कुछ ही तकरीबन बता दिया कि सिलिकॉन को अप्लाई किया, हाइपोक्सिया टॉलरेंस हुई। वो हुई कैसे है? पॉलीमाइन्स की वजह से। अब अगर मैं जस्ट ये लिख देता फैक्ट ऑफ, ठीक है, तो इतना इफेक्ट ऑफ इतने पेपर आप ठीक है जा रही वो यही है। ठीक है ना? आपने रिसर्च पेपर लिखना है कि आप पीएचडी का को टॉपिक आपने चूज करना है, वो ऐसा हो ना कि एक बार ना अखा खुल जान चाहिए अभी। ठीक है ना? ताकि आपसे क्वेश्चन बड़े पूछे वो। तो थैंक यू विजया, बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है, एक्सीलेंट जी। तो हमारा हो गया टाइम, ऊपर हो गई है? चलिए आप चले थे जाए ना, तो आपकी अटेंडेंस ले लें 1 मिनट।